Hello guys, this is Reena Yadav. Welcome you all on Reena Yadav classes, and today's we will continue our graph theory. So today's our topic is isomorphic graph. Okay, so in today's lecture we will discuss about isomorphic graph, its properties with an example. Okay, we will take an example and discuss the properties. Okay, so that we can better understand the isomorphic graph. Okay, so let's start. What is isomorphic graph? First of all, isomorphic graph um, means if one graph is looks like the second one. ठीक है, मीन्स वी हैव गिवन टू ग्राफ. अगर हमें दो ग्राफ गिवन है एंड बोथ ऑफ टूज आर सीम्स अलाइक, मीन्स दोनों सेम दिख रहे हैं. ठीक है, सेम दिखना मीन्स बोथ हैव द सेम प्रॉपर्टीज. ओके, द प्रॉपर्टी वी आर गोना डिस्कस फर्दर. ठीक है, बोथ हैव द सेम प्रॉपर्टीज, तो उनको हम आइसोमॉर्फिक बोलेंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. The two graphs are said to be isomorphic to each other if first condition is they have same number of vertices. ठीक है, means both graph which we have given have the same number of vertices. ठीक है, if first one is contain 5 vertices, then second one must be contain 5 vertices. Okay, means equal number of vertices both should have. Second one is same number of edges. number of edges है वो भी सेम होनी चाहिए. द थर्ड वन इज डिग्री ऑफ कोरस्पोंडेंस वर्टेक्स इज सेम. ठीक है, कोरस्पोंडेंस वर्टेक्स, व्हाट इज हियर मीन ऑफ कोरस्पोंडेंस वर्टेक्स? सी, लुक, वी हैव टू एग्जांपल. ठीक है, इन दिस एग्जांपल वी हैव ए बी सी डी ई एन एफ. ठीक है, 6 edges, and the second graph we have also 6 edges. ठीक है, A dash, B dash, C dash, D dash, E dash, and F dash. Okay, so correspondence vertex means if we consider A is equal to vertex F. Okay, if we assume that vertex A is equal to vertex F, okay, means they both should have equal number of degree. Okay, here A have number of degree of vertex A is 2. You know what is number of what is degree of a vertex? How many edges are connected with that particular vertex? See, here A have degree 2. You can see only 2 edges are connected with A. Here F dash, only 2 edges are connected with F dash. Okay, so A is correspondence to F dash. Okay, we can say that A is correspondence to A dash because A dash also have same degree. Okay, it is not necessary that only F dash is the correspondence vertex. Okay, because in this example every vertex have same degree. Okay, it is a what vertex which have same number of degrees. ठीक है, सो यहाँ पे हम मतलब कोई भी ले सकते हैं कि यहाँ पे ए के जो कोरस्पोंडेंस है वो ए डैश भी बी डैश भी, बट यहाँ पे हमने खुद की तरफ से अज्यूम किया, खुद की तरफ से मान लिया दैट ए डैश इज एफ डैश, ए इज इक्वल टू एफ डैश. ओके, तो ये हमारे हो गए कोरस्पोंडेंस वर्टेक्स. ओके, नेक्स्ट वी विल टेक एन एग्जाम्पल, वहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी व्हाट इज इट? सेम नंबर ऑफ रीजन. ओके, मीन्स बोथ जो ग्राफ हमें गिवन है उनका जो रीजन है, नंबर ऑफ रीजन वो सेम होना चाहिए. जैसे यहाँ पे ये जो ग्राफ जो 1 ग्राफ और 2 ग्राफ मैंने इनको नंबरिंग दिया, जो ग्राफ 1 है उसमें नंबर ऑफ रीजन कितने? 2, आउटर रीजन एंड इनर रीजन. एंड इन सेकेंड ग्राफ हाउ मेनी रीजन्स आर देयर? आउटर रीजन, inner region. Okay, means both have same number of region. Okay, now let's go further. So here are the property are discussed deeply. So look here, to check whether two graphs are isomorphic or not. ये पता लगाने के लिए कि given graphs हैं वो isomorphic हैं या नहीं है. So first condition, number of vertices we will check. ठीक है, okay, let's check the number of vertices. See graph number 1 and 2. Graph number 1 have 6 number of vertices,
2 also have 6 number of vertices. So first condition is satisfied. ठीक है. Now we have the second condition. Number of edges. Let's check the edges. Okay. So here 1 2 3 4 5 6 edges are here. 1 2 3 4 5 6 edges are here. ठीक है. Both have same number of edges. Second condition also satisfied. Then comes to the third condition. Okay. I said that assume we will see the वर्टेसिस. ठीक है. मीन्स हमने ग्राफ 1 में देख लिया और फिर ग्राफ 2 में हम चेक करेंगे कि सेम डिग्री का इसमें कौन सा वर्टेक्स है. ठीक है. अब यहाँ पे वी विल सी दैट यहाँ पे हमने ई ले लिया. ई की वर्टेसिस कितनी है, ई से कितनी वर्टेसिस अटैच है 2, तो ई की डिग्री 2 हो गई यहाँ पे. ठीक है. अब हम 2 नंबर ग्राफ में चेक करेंगे कि यहाँ पे कोई ऐसा वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 2 हो. ठीक है. तो यहाँ पे जैसे सी डैश मान लो. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे तो सबकी डिग्री सेम है, बट अगर किसी एग्जाम्पल में ना हो तो हमें चेक करनी पड़ती है कि ए ई की डिग्री 2 है तो जो इसके कोरस्पॉन्डेंस हम वर्टेक्स ले रहे हैं उसकी डिग्री भी सेम होनी चाहिए. ओके. ठीक है. तो हमने यहाँ पे जैसे ले लिया ए के कोरस्पॉन्डेंस हमने एफ ले लिया, बी के ए डैश, सी के बी डैश. तो यहाँ हमने इनको कोरस्पॉन्डेंस ले लिया और जो कोरस्पॉन्डेंस वर्टेक्स हमने सिलेक्ट किए हैं दे ऑल हैव इक्वल नंबर ऑफ डिग्री. ठीक है. ए इक्वल टू एफ डैश एंड बी इक्वल टू ए डैश एंड सो ऑन. ठीक है. जो भी वर्टिसेस हमने लिए हैं कोरस्पॉन्डेंस उनकी सबकी डिग्री इक्वल है. ठीक है. देन द थर्ड कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड. ओके. थर्ड कंडीशन ऑल्सो सेटिस्फाइड. नाउ कम टू द फोर्थ कंडीशन. Number of regions. The first graph has 2 number of region in inner and outer. The second one also have the 2 number of regions, inner region and outer region. Okay. So here all conditions are satisfied. So we can say that the given 2 graphs are isomorphic to each other. Okay. These are the basic property. Okay. Now we better clear with the example. Okay. Let's take the example. See. Here is given which one of the following graph is isomorphic to a given graph. So here we have given this graph. Okay. This graph we have given. Okay. So here the numbering is showing the degree of the vertex. Okay. So this vertex having 1 degree, this also 1 degree, this vertex having 2 degree, this vertex having 4 degree, this one has 2, this one has 2, 2, 2 and 2. Okay. So here we have 8 vertices. Okay. And the numbering here is showing the degree of that particular vertex. Okay. Got it. So what we have to do now, note down the number of vertices, number of edges, number of region. Okay. The 3 conditions we have note down from that particular graph. Okay. Let's do that. So number of vertices 8. Okay. Number of edges 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Okay. Number of edges 8. Then number of region 2. Number of region 2. How? This inner region and this outer region. Okay. This is also the outer region. Okay. Because it is not covered in between edges. Okay. It is open by one side, which is also a outer region. Inner regions means which is covered, means covered between the edges. Okay. So this is the condition. So now let me see the options. Okay. It is a question, so we have given 4 options. We have checked which one is isomorphic that given graph. Okay. So here we also have discussed the answer, but we will understand how the second option is right. Okay. So let's see the first graph here. Okay. This given graph, option 1 is here. So here we see number of vertices is 8, region is also 2, number of edges is also 8, which is equal to that given graph. Okay. मीन्स यहाँ पे ये जो गिवन ग्राफ की प्रॉपर्टी है वो सारी सेटिस्फाई हो रही है, बट वन कंडीशन दैट वी मस्ट चेक कोरस्पोंडेंस वर्टेक्स डिग्री. ठीक है.
जो कोस्पोंडेंस वर्टेक्स है उसकी डिग्री चेक करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारे पास गिवन ग्राफ है हमारा, ठीक है, उसमें एक वर्टेक्स की डिग्री 4 है, इसमें भी 4 है। यहाँ पे हाउ मेनी वर्टिसेस हैव डिग्री 2, 5, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे मीन्स जो 2 डिग्री है वो 5 वर्टिसेस की है, बट यहाँ पे जो 2 डिग्री है वो सिर्फ 3 वर्टिसेस की है। तो मीन्स जो 2 हमारे पास 2 डिग्री वाले जो 2 वर्टिसेस बच गए, उनके कोरस्पोंडेंस तो यहाँ पे कोई वर्टेक्स है ही नहीं, ठीक है। तो मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ओके, देन वी सी द this one option. Okay, so in the given graph we have 5 vertices of 2 degree and 1 vertices of 4 degree, ठीक है, 1 vertices of 4 degree and 5 vertices of 2 degree, ठीक है। So here see, there is no vertex with degree 4 in this graph, no vertex is with degree 4, so it is the wrong option, means there is no correspondence vertex of vertex having degree 4, means जिस vertex की डिग्री 4 है उसके correspondence तो इस ग्राफ में कोई vertex है ही नहीं, ठीक है। तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट भी देखते हैं कि ये डी ऑप्शन है जो इसका क्या है। ओके, इसमें हमारे पास जो ऊपर वाले ग्राफ में हमने देखा कि जो 2 डिग्री वाले वर्टेक्स हैं वो हमारे पास है 5, ओके, और जो 1 डिग्री वाले वो है 2 और 4 डिग्री वाला 1, ठीक है। तो इस ग्राफ में देखो, इसमें 2 डिग्री वाले 1 2 3 4 5 हैं, ठीक है। ओके, 2 डिग्री वाले सॉरी 1 डिग्री वाले 2 हैं और 4 डिग्री वाला 1 है। तो मतलब सारी कंडीशन, सारे वर्टेक्स उसके कोरस्पोंडेंस डिग्री वाले वर्टेक्स मिल गए। बट अब हमें नेक्स्ट थिंग क्या चेक करनी है कि जो 4 डिग्री वाला वर्टेक्स है, कोई भी ले लो, हम यहाँ पे मैं सिर्फ 4 ले रही हूँ, कि जो 4 डिग्री का वर्टेक्स है वो किस वर्टेक्स से कनेक्ट है, ठीक है। तो इसमें जो 4 डिग्री का वर्टेक्स है वो उसके जो चारों जो एजिज हैं वो किस वर्टेक्स से कनेक्ट है, जिनकी डिग्री है 2। ये जिस भी वर्टेक्स से कनेक्ट है उस सब की डिग्री 2 है। बट इस गिवन ग्राफ में जो ये 4 डिग्री वाला वर्टेक्स है, ये 3 साइड से तो 2 डिग्री के वर्टेक्स से कनेक्ट है, बट 1 साइड पे 1 डिग्री के वर्टेक्स से कनेक्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो वर्टेक्स जो गिवन है वो उसके कोरस्पोंडेंस नहीं है, ठीक है। मीन्स कहीं पे एरर है उस ग्राफ में, ठीक है, तो वो गलत हो गया। अब हम चेक करते हैं लास्ट ऑप्शन। ओके, हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा है, ठीक है। 4 डिग्री का जो वर्टेक्स है, एक सेकेंड, ओके, सी 4 डिग्री जो वर्टेक्स है वो 3 साइड से कनेक्टेड है 2 डिग्री एंड 1 साइड से कनेक्टेड है 1 डिग्री। ओके, सो ये किसके कोरस्पोंडेंस हो गया, इस गिवन ग्राफ के, कि जो 4 डिग्री का वर्टेक्स है, जो 4 डिग्री का वर्टेक्स है वो 3 साइड से तो 2 डिग्री से कनेक्ट है एंड 1 साइड से 1 डिग्री से कनेक्ट है, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई। उसके बाद क्या कह रहा है, चलो ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई और दो जो वर्टेक्सेस हैं वो उनकी डिग्री 1 1 है, ठीक है। जो 2 डिग्री का वर्टेक्स है वो 2 डिग्री के साथ ही कनेक्ट है। 2 डिग्री का वर्टेक्स यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे 2 डिग्री का वर्टेक्स 1 के साथ कनेक्ट है और यहाँ पे भी ये 2 डिग्री का वर्टेक्स यहाँ पे भी 1 के साथ कनेक्ट है, ठीक है। तो मीन्स सिर्फ यही नहीं चेक करना कि कोरस्पोंडेंस डिग्री इक्वल है, डिग्री तो इक्वल है दोनों की, चलो ठीक है, सेम है, सबकी डिग्री हर एक वर्टेक्स की मैच हो रही है। उसके बाद भी हमें ये कंडीशन चेक करनी है कि कोई पर्टिकुलर वर्टेक्स जिस भी वर्टेक्स से कनेक्टेड है उनकी डिग्री भी क्या सेम है, ठीक है। वो भी हमें प्योर रिजल्ट दे रहे हैं नहीं दे रहे, ठीक है। तो ये जो हमें रिजल्ट मिला है इस वाले ग्राफ से, सो ये जो हमें रिजल्ट मिला है इस वाले ग्राफ से, डिग्री ऑफ एडजेसेंट वर्टेक्स इज सेम एज इन द क्वेश्चन ग्राफ, ठीक है। मीन जो क्वेश्चन में जो ग्राफ हमें गिवन है उनकी डिग्री एडजेसेंट एडजेसेंट वर्टेक्स के सेम है, मीन्स बराबर है। ओके,
तो ये हमारा मिस ऑप्शन जो बी है वो हमारा हो गया आंसर। ओके, तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी गिवन ग्राफ है वो आइसोमॉर्फिक है या नहीं। ठीक है गाइस, सो ये हो गया आइसोमॉर्फिक ग्राफ विद एग्जांपल। ठीक है, पेपर में आ सकता है, इतना मतलब इजी क्वेश्चन है ये, ज़्यादा टफ टॉपिक है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान करके सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखनी है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।